हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने पॉलिटी के रिपीटेड थीम के कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो स्टेट पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछने के बहुत चांसेस हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। First, who made the first formal demand for the Constituent Assembly at a conference in Ranchi in May 1934? तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले फॉर्मल डिमांड रखी थी कहाँ पे? रांची में। कब? 1934 में, कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, who put forward the idea of constituent assembly for the first time in the year 1934? तो एम एन रॉय ने सबसे पहले आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉरवर्ड किया था 1934 में। Question number third, when did the Indian National Congress officially demand a constituent assembly to frame the constitution? तो answer 1934. In what year did Jawaharlal Nehru on behalf of Indian National Congress declare that the constitution of free India must be framed by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise? तो जवाहरलाल नेहरू ने adult franchise की बात की थी और कब किया था? ये 1938 में। In which year was a demand for a constituent assembly finally accepted in principle? तो 1940 में demand was finally accepted. Under which plan was the constituent assembly constituted? तो cabinet mission plan से constituent assembly बनी थी। How was the number of representative फ्रॉम प्रोविंसेस डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कैसे डिसाइड किए जाते थे नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रोविंसेस? 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन होते थे, पर 10 लाख पीपल। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सीट्स वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो 296 सीट को अलॉट किया था टू ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, When were the election to the Constituent Assembly held for the 296 सीट? तो इलेक्शन हुए थे जुलाई-अगस्त 1946 को। When did the Indian National Congress win 200 seat in the Constituent Assembly election? तो ड्यूरिंग द इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई-अगस्त 1946 तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट जीती थी। Question number 11. When did the representative of princely state begin to join the Constituent Assembly gradually? Answer, third session of Constituent Assembly commencing on 28 April 1947. Question number 12. What was the basis of the Constituent Assembly formation? तो indirect election के through Constituent Assembly form हुई थी। Question number 13. According to which act were the voting right limited based on tax, education and property? तो Government of India Act 1935 से voting right were limited based on tax, education and property. Question number 14. When did the Viceroy invite इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 9 दिसंबर 1946 को वाइसरॉय ने इनवाइट किया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। क्वेश्चन नंबर 15, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने फर्स्ट मीटिंग को प्रिसाइड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज में। When was the Constitution adopted in the Constituent Assembly? 26 नवंबर 1949 को Constitution adopt हुआ था। When did the Constitution of India completely came into force? तो आया था 26 जनवरी 1950 को। How many women were there in the Constituent Assembly? 15 women थी Constituent Assembly में। Question number 20, who was appointed as a constitutional advisor to the Constituent Assembly? तो सर B.N. राव जो थे वो constitutional advisor थे। Question number 21. When did the interim government of India form excluding any member from the Muslim League? तो 2 सितंबर 1946 को interim government form हुई थी। Question number 22. When were the 5 members of the Muslim League finally included in the cabinet? Answer होगा 26 अक्टूबर 1946। Who were the member of interim cabinet in 1946? मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जॉन मैथेई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, C.H. भाभा, लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर, आसिफ अली, सी राजगोपालाचारी, I.I. चंद्रिका, गजनफर अली खान, युगेंद्र नाथ मंडल। क्वेश्चन नंबर 24, हु चेयर्ड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? तो जवाहरलाल नेहरू ने चेयर की थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। हुआ था मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी पूछते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलदी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला
एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज द एडॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग अपॉइंटेड एंड हु चेयर्ड इट? तो नेशनल फ्लैग की एडॉक कमेटी अपॉइंट हुई थी 23 जून 1947 को और चेयर किया था राजेंद्र प्रसाद ने। What was the key principle for determining the number of representative from provinces? तो 1 representative per 10 lakh people होते थे। Who held the portfolio of defense in the interim cabinet? तो सरदार बलदेव सिंह ने डिफेंस का पोर्टफोलियो संभाला था इंटरिम कैबिनेट में। Which committee deal with fundamental right, minority and tribe? तो एडवाइजरी कमिटी फॉर फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनली केम इनटू फोर्स? तो 26 जनवरी 1950। हु रिप्लेस डीपी खैतान इन द ड्राफ्टिंग कमिटी? तो एन माधव राव ने डीपी खैतान को ड्राफ्टिंग कमिटी में रिप्लेस किया था। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अ मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच एक्ट? तो मेजर पोर्शन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट प्रोविजन आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन? तो रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप ली है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रेरोगेटिव रिट्स, ये सब किससे लिया है? ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड प्रेरोगेटिव रिट्स। यूएसए से क्या लिया है? प्रियम्बल लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, फंडामेंटल राइट लिया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आयरलैंड से क्या लिया है? डीपीएसपी लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा लिया है। कनाडा से क्या लिया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रेसिजरी पार्ट टू द वेस्टेड इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, ये सब कनाडा से लिया है कि फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना चाहिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, रेसिजरी पार्ट जो है वो सेंटर तक वेस्टेड होनी चाहिए, और अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, तो थोड़ा सेंट्रल सिस्टम हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट प्रोविजन आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट में, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लिया है, और आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अगर पूछा जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली है तो ऑस्ट्रेलिया से ली है, ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से ली है तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी? तो इमरजेंसी का हमने जर्मनी से लिया है। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ? तो जापान से लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। व्हाट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसएसआर? फंडामेंटल ड्यूटी हमने यूएसएसआर से ली है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं प्रियम्बल में, वो हमने यूएसएसआर से लिया है। फ्रांस से क्या लिया है? रिपब्लिकन सिस्टम लिया है। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, ये सब हमने फ्रांस से लिया है। व्हाट वर द पोर्टफोलियो इन द इंटरिम कैबिनेट? फूड एंड एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेबर जगजीवन राम। अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चर का पोर्टफोलियो राजेंद्र प्रसाद के पास था, लेबर का पोर्टफोलियो जगजीवन राम के पास था, डिफेंस का पोर्टफोलियो सरदार बलदेव सिंह के पास था, वर्क्स, माइंस एंड पावर का पोर्टफोलियो सीएच भाभा के पास था। व्हाट वर द पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट कैबिनेट? अच्छा, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या पोर्टफोलियोज थे? फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद के पास ही था, डिफेंस सरदार बलदेव सिंह के पास था, लेबर का जगजीवन राम के पास था, और कॉमर्स का सीएच भाभा के पास था। How did C.H. Bhabha portfolio in the first cabinet of independent India differ from his portfolio in the interim cabinet? तो फर्स्ट कैबिनेट में C.H. भाभा के पास कॉमर्स का था और इंटरिम में हमने देखा कि वर्क, माइंस एंड पावर का था। एक्स्ट्रा नोट, देवर 22 पार्ट, पहले 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉपी में कॉन्स्टिट्यूशन के। अब बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए तो 465 आर्टिकल्स हो गए, सब पार्ट के फॉर्म में आर्टिकल्स में ABC लगा दिया गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन बताता है। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट बताता है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट बताता है।
आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन बताता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 टाइटल्स का एबॉलिशन बताता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस बताता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्री प्रोफेशन, फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आता है। आर्टिकल 27 में फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 में फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आता है। ये बार बार पूछते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 29 में। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 30 में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रिट्स किस में आता है? आर्टिकल 32 में। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आर्टिकल 38 में क्या आता है? स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 में सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट आता है। 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस। आर्टिकल 43 लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। आर्टिकल 45 में प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है। आर्टिकल 48A में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। आर्टिकल 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है। और आर्टिकल 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत रिपीटेड आर्टिकल है, प्लीज़ इनको याद कर लिएगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।